चूरो ढालना है, सीधे ढालना है। अनि यस्तो बाहिर सानो दिपेन्द्र सुनार सब मनी सब Number one, I will tell you number one. You have to clap. Number two. Number three, you have to laugh. Okay, thank you. Now, the next session, it will be somehow fast. Okay? क्योंकि जड़ मैंने मजबूत कर दिया है, मुझे विश्वास है जड़ मैंने मजबूत कर दिया है। अब पत्ते पत्ते पर बात करेंगे। Who will you prefer, A or B? B. Almost it, but not both. B. B. Next. Light off here. वहाँ का light off. Next. Means what? Representation. Presentation is almost. आज की तारीख में कस्टमर कहीं नहीं जाता है, वो देखता है कि प्रेजेंट कैसे करते हैं, और जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा कस्टमर वही जाएगा। तो प्रेजेंटेशन में आती है चीजें हेड टू टूज, टॉप टू बॉटम, सारी चीजें जो है प्रेजेंटेशन के भीतर में आती हैं, सारी चीजें, राइट? Do you think grooming is an important aspect of personal effectiveness? Grooming is essential? Yes. This is one of the part, not the main part. मैं मेन पार्ट में बता चुका हूँ, मैंने जो बताया लेवल ऑफ एनर्जी पर सोना वो किताब के नहीं है, वो किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, किताबों में वही मिलेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो ओके, ग्रूमिंग, what is grooming? Threshing.
तो आपने देखा टॉप टू बटन सब कुछ जरूरी है, शूज पॉलिश होने चाहिए, है ना, तो आपका ग्रूमिंग होने चाहिए, ड्रेसिंग होने चाहिए, है ना, रिंग कैसे पहनना है, एक एक चीज को इसने बताया, है ना, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग क्या होता है, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया। जब आप अगर स्नान नहीं करेंगे, बाथिंग इज कम अंडर द पर्सनल हाइजीन, तो आपके इफेक्टिवनेस पर असर पड़ेगा, है ना। जब आप स्नान करके काम करने आते हैं तो आपकी फुर्ती अलग हो जाती है। जब आप फिट फाट रहते हैं, वेल ड्रेस, आपको अगर पता है कि हम वेल ड्रेस हैं, तो आपकी एनर्जी का लेवल जो है अलग हो जाता है। और जब आपको पता है कि हम वेल ड्रेस में नहीं है, तो आपका एनर्जी का लेवल कुछ और हो जाता है। आप खुद कुछ दबे दबे रहेंगे, खुद आपकी एनर्जी कभी लगी रहेगी वही राख बनकर, है ना, राख बनकर रहेगी कभी भी, है ना, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी। हर आदमी के पास कुंडलिनी है, सोया हुआ है ना, उसे ही आपकी शक्ति सोई हुई जाएगी। Hygiene, brushing. See another video on hygiene and grooming. Personal health, hygiene and grooming. In this video, we will learn the importance of staying well groomed and maintaining personal hygiene. We will also learn some grooming essentials and see what happens when we fail to maintain our appearance. Proper grooming and personal hygiene are essential to promoting good health. Habits such as washing your hands, bathing and brushing teeth may all sound too basic and monotonous, but they hold plenty of importance in keeping you healthy and warding off illnesses. They also help you feel good about yourself and create a positive impression on others. Before we look at some ways to stay healthy and hygienic, let's understand what is meant by personal hygiene. Personal hygiene involves taking care of our bodily health and well-being through cleanliness. It means that you bathe using soap and water every day and shampoo your hair regularly. Check your hair for any signs of lice and dandruff, and use a medicated shampoo if necessary. When it comes to grooming, always wear clean and washed undergarments, clean and ironed clothes, and a fresh pair of socks every day. Sweaty clothes or smelly socks bother other people around you, and also cause breeding of germs. Always remember to clean or polish your shoes. You must also brush your teeth twice a day and floss once a day to avoid gum problems. Change your toothbrush every 3 months and use a good quality toothpaste. Use natural mouth fresheners like green cardamom or fennel seeds to keep bad breath in check. It's also very important to keep your nails clean and trimmed at all times. Dirt can easily accumulate beneath long nails and cause bacteria to breed. Dirty nails not only look terrible, but can cause food poisoning and other diseases too. Another very important thing to do is to wash your hands with soap and water before and after eating food, after using the toilet, and after coughing or sneezing. It's a good idea to keep a hand sanitizer handy for when soap and water are not available. Let's look at a scenario to understand the importance of good personal hygiene and grooming. Sam has recently joined a retail store in the sales department. He notices that customers approach him with queries, but they appear uncomfortable and then go to the next counter. Because of this, Sam's sales are suffering. He approaches his friend Chris for advice. Chris, I am quite worried about not being able to make any sales. Customers come to me, but then they quickly go away without making a purchase. I think I know what the problem is. Apparently you haven't been paying attention to grooming and hygiene. What do you mean? See, you haven't shaved for many days, and it looks like you need a shower. Your body odor could be turning customers away. Actually, I have been keeping busy the last few days and didn't have time to take a bath. Well, if you don't shower or wear sweaty clothes, everyone can smell it, even from a distance. But what can I do if I sweat a lot and end up smelling even if I take a bath? You can use deodorant on your armpits every day after you shower, Sam.
But remember to not use too much, because the fragrance then gets too much and can make other people uncomfortable. Oh, I didn't know that. Anyhow, now that you have seen how your lack of grooming and hygiene is affecting your work, you must promise yourself to take care of it. Thank you, Chris. Sam learned his lesson and made it a priority to brush his teeth properly, bathe regularly, wear clean clothes, and keep his beard trimmed. Soon, customers started coming to his counter as well, and his sales picked up. Both men and women must make efforts to appear well groomed, clean, and presentable at all times. Men should shave or trim their beard regularly, and women should get any awkward body and facial hair removed. Now, along with maintaining personal hygiene, it's important to keep your surroundings clean. This means that you should always flush after using the toilet, and never spit on the road or in any open area. Finally, maintain a healthy lifestyle. Make sure you eat a healthy, balanced diet, and include enough green vegetables and fruits in your diet. Drink at least 8 to 10 glasses of water. Exercise at least 4 times a week, and go for a jog or run every day. Remember, it takes only a little time to appear well groomed and stay fit and healthy. But the rewards of doing this are many. Your mind and body will thank you for making the effort, and so will others around you. Good luck. Personal health, hygiene. दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें तो सब कोई जानता है। दो तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना? जो भी चीज आज करते हैं, कोई ऐसा चीज होता नहीं कि अट्रैक्ट करता है, कोई चीज ऐसा होता नहीं कि अटैक करता है। ये दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? कोई भी चीज जो है, आप ड्रेस भी ऐसा पहने कि अट्रैक्ट करे, अटैक नहीं करे, है ना? तो ये मूल फंडा है ना? अट्रैक्टिव काम करे, अटैकिंग काम न करे। बाकी सब चीजें तो जनरल है, जो डे बाय डे सुबह से हर बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं, ऐसे करना है, ड्रेस करना है, सुबह में बात करना है, बाथरूम जाना है, नहाना है, ये सारी चीजें कॉमन है। बस इसको यूज मिलाना है, और कस्टमर के सामने अगर आप सही ढंग से जाएंगे तो कस्टमर पहला इंप्रेशन आपको देख के ही बनाता है। कस्टमर कोई भी हो, पहला इंप्रेशन आपको देख के बनाता है। बात करने के बाद उसको पता चलता है कि आदमी कैसा है ना? तो देखिए, एक फर्स्ट इंप्रेशन है, इंप्रेशन देख के कैसे काम करता है। इसको बोलते हैं अटैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? अटैकिंग। ये अटैक कर रहा है, मतलब ये ध्यान जरूर खींच रहा है, बट इट इज अटैकिंग। ध्यान दोनों कंडीशन में जा रहा है। पहला चीज क्या है? अटैक कर रहा है ना? अनकंफर्टेबल, हम देख रहे हैं, लेकिन देखने के बाद क्या है? कंफर्टेबल, वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। दूसरा में क्या है? अटैक कर रहा है।
क्या काम आता है प्रेजेंट करने में? कम्युनिकेशन। आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ लोगों को बुलाया, किन्हीं का बोलने का तरीका कुछ और था, किन्हीं को बोलने का तरीका कुछ और था, कोई फोकस होके बोले, कोई गोल गोल बात किए, ये सारी चीज थी ना। टॉपिक एक, कोई टॉपिक सेंटर में है, टॉपिक में नहीं रख करके उसके सराउंडिंग में कोई आदमी घूमता रहा, कोई टॉपिक पर फोकस रहा। किसी को था कि हम बोल तो रहे लेकिन देंगे कुछ नहीं, है ना, वही था कि देने के लिए तैयार है। जैसे इनका आप कहते ना, इनकी एक्टिविटी एक्सप्रेशन ठीक था, है ना। तो ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन करता है। इसका रूल है 73855। 73855। 7% क्या है? वर्ड। जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं, दैट्स कन्वे ओनली 7%। दैट कन्वे ओनली 7%। सोचे, बोलना कितना मायने रखता है? ओनली 7%। ओनली 7%। है ना। 38%, 38% क्या है? वोकल एंड वॉइस। 38% क्या है? वोकल एंड वॉइस। 38% किस तरह से बोलते हैं। जैसे मैंने कहा इनको, तुम चोर। मेरा शब्द क्या है? तुम चोर हो। अब इसी चीज को, तुम चोर हो, शब्द वही रहा, लेकिन बोलने का तरीका मैंने बदल दिया। तो पहले मैं कंफर्म कर रहा हूं कि तुम चोर हो, और दूसरे में तुम चोर हो, मैं डाउट कर रहा हूं, अरे ये कैसे पर ब्लेम मिल गया, ये गलत ब्लेम है, तुम चोर हो, असर हो रहा है। तो वर्ड एक ही है, लेकिन वर्ड जब मैंने बोला तो बोलने के तरीके से कम्युनिकेशन डिफर हो गया। तो 7% जो होता है वो वर्ड से कन्वे होता है, 38% वॉइस, वोकल से कन्वे होता है। वॉइस क्या है? दैट इज पेस, स्पीच, पावर, पॉज। पेस क्या होता है? व्हाट इज पेस? स्पीड, है ना। जैसे कोई आएगा, कोई एकदम आया और आते ही तोप छोड़ दिया, आते ही तोप छोड़ दिया, और वो तोप सर के ऊपर से जा रहा है ना। दिमाग कर रहा है कैच करे तब तक पास, ऊपर से ना, दिमाग को कैच करने का टाइम चाहिए ना, और ऊपर से पास हो जाए। तो बोलने का स्पीड कैसा होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है ना, किस स्पीड से बोल रहे हैं। कहीं कहीं स्पीड की भी जरूरत है ना। एक फिल्म था ना, एक सनी देओल का, पता नहीं आप हिंदी फिल्म आप लोग देखते हैं नहीं, कि उसमें क्या था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कितना स्पीड में बोला था। तो वहां उसका ये डायलॉग जो था वो फेमस हो गया, क्योंकि वहां पर क्या था, उसकी नीड थी। तो कहीं जो है स्पीड की जरूरत है, कहीं स्पीड की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेस। पिच क्या है? उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। जैसे मैंने शब्दों को उतार चढ़ाव से अर्थ को अनर्थ कर दिया। तुम चोर हो, तुम चोर हो, ये क्या है? उतार चढ़ाव, शब्दों का उतार चढ़ाव, है ना। तो शब्दों के उतार चढ़ाव को बोलते हैं पिच, पावर। जैसे कोई आदमी यहाँ बोल रहा हो, दो आदमी को सुनाई दे रहा है, पीछे किसी को नहीं सुनाई दे रहा, कोई आदमी बोलेगा तो सबको सुनाई देगा। तो लिसनर को, सबको, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं जब बोल रहा हूँ तो सबको सुनाई देना चाहिए, ये ना कि मैं बोला और इनको सुनाई देगा ना। ये क्या है? पावर। आपके साउंड में पावर दिखना है। एंड नेक्स्ट पॉज, ये भी बहुत जरूरी होता है कभी कभी, है ना। पॉज भी बहुत, पॉज मतलब क्या? जानते नहीं हो तुम, हमको नहीं जानते हो, मतलब सोचने का टाइम दे रहे हैं कि सोच लो कि हम हैं कौन। सोचने का टाइम दे रहे हैं। तो कभी कभी बातों को इम्पैक्ट करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए पॉज की भी जरूरत पड़ती है। तो these are the word, place, speech, power, pause. These convey 38% meaning of the word communication. These convey 38% communication, and rest is the 55% visual appearance, body language. ये कन्वे करता है। जैसे आपका CMD अगर बुला के आपको कह दे ये काम करना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। He need not required to repeat at all.
है ना, और आपका नीचे का अधिकारी कर दे इस तरह का काम कर दीजिए ना, आपको समझने में 4 दिन लगेगा। Why? Because there is another type of communication that's come under the visual appearance, body language, that's come under the non-verbal communication. Communication कुछ non-verbal भी होते हैं। एक CMD अगर आपको कह रहा है, कह कुछ नहीं रहा है, कह रहा है काम कर दो, non-verbal क्या है कि हम CMD हैं, नहीं करोगे तो फिर सोच लो हम है कौन, CMD, है ना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बहुत तेजी से समझ में आएगा, है ना। अपीयरेंस, है ना, एक अच्छा आदमी जिसका अपीयरेंस अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, उसकी बातें इफेक्टिव होती है ना। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट 55% and verbal communication communicate 45% and in-verbal word whatever I am telling to you that convey only 7% and the way of word what I am telling you that convey 38%, right? तो कम्युनिकेशन में क्या कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, आप समझ गए? You are having a great knowledge, sir. You are having a great knowledge, but you have to learn how to communicate. You are telling the thing in very large scale, है ना। तो ये हम मेरी बात को लीजिएगा, ये मेरा उद्देश्य क्या है कि आप इम्प्रूव करें, है ना। आपकी बातें सही हैं, आप चीजों को अच्छे से जानते हैं। अब जरूरत क्या है, बहुत आदमी चीजों को नहीं जानता है, चीजों को नहीं जानता है तो कहेगा क्या। आप चीजों को जानते हैं लेकिन उसको आप कह नहीं पा रहे, है ना। तो ये इसको कैसे कहें, तो इसमें हमेशा देखिए चीजों का कीवर्ड कैसे निकालें, और पहले कीवर्ड बोलते हैं ना, कीवर्ड, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। यानी कि आपको क्या करना है, आपको 55% वाला दायरा पर आपको ज्यादा काम करना है, 7% में आप बिल्कुल फिट है, यू आर वेरी मच फिट फॉर 7%, है ना। आप अच्छे तरीके से 7% का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमको देखना है कि इसके दायरे में हम क्या क्या हमारी कमी है, कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा वे ऑफ टॉकिंग का होना चाहिए, बातचीत करने में कहाँ पेस की जरूरत है, स्पीड की जरूरत है, पिच की जरूरत है, पहुंच की जरूरत है, पावर की जरूरत है, ये सब चीज को देखना समझना है, राइट। कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज द टू वे प्रोसेस, दिस इज टू वे प्रोसेस, वन वे नहीं होता है कम्युनिकेशन, वन में होता ही नहीं। अगर मन में भी चिंतन करते हैं तो आपका चिंतन किसके प्रति है, परमात्मा के प्रति। There also you are not communicating one way. अगर आप ध्यान में जाते हैं तो परमात्मा से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बाहर में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आत्माओं से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जीवात्माओं से कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। भीतर में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो परमात्मा से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे, वन वे नेवर, है ना। एक आदमी मैसेज को सेंड करता है, दूसरा रिसीव करता है, एंड what is the most important, the meaning is poured into the words by the receiver, the meaning is poured in the word by the receiver। इसलिए जो कह रहा है वो वास्तव में कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि रिसीवर क्या रिसीव कर रहा है, और रिसीवर क्या रिसीव करेगा इसका दायित्व है सेंडर पर, कि कैसे वो कोड करके भेज रहा है, उसको वो डिकोड सही ढंग से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द टू वे कम्युनिकेशन, पर्सनल इफेक्टिवनेस, मेकिंग ऑल यूज ऑल रिसोर्सेज बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल यू हैव एट योर डिस्पोजल, इंक्लूड योर टैलेंट, स्ट्रेंथ, स्किल, एनर्जी, टाइम, enable you to master your life and achieve both work and life goal। आप अगर इफेक्टिव हैं तो सब जगह रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप ऑफिस में खराब हैं और घर में अच्छा हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए आप ऑफिस में अच्छा करें ताकि आप घर पर भी अच्छा रहें, आपके बच्चे भी अच्छा रहें। नहीं तो क्या होगा, बॉस आपको गाली दिया, आप गलत काम करेंगे, नेचुरली बॉस क्या करेगा, आपको गाली दे देगा। अब बॉस गाली देगा तो बॉस को तो आप मार नहीं सकते हैं,
तो बॉस को नहीं मारिएगा तो घर जाइएगा, तो बीवी पर अटैक कीजिएगा, अरे तुमने आज ये कर दिया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, है ना। अब बीवी आपको क्या करेगी, आपको पकड़ के नहीं मारेगी, है ना। तो बच्चे आएंगे बाहर से खेलते हुए, अरे तुम दिन भर बदमाशी करते हो, दिन भर खेलते रहते, ये वो फलाटे खान। अब बच्चे क्या है, बच्चे तो मदर को जवाब देंगे नहीं, तो जाएंगे खिलौना पटक देंगे, हाँ खिलौना टूट गया। खिलौना कैसे टूटा, बॉस ने कहा। खिलौना कैसे टूटा, सर इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। बच्चे अपने घर में जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स को मार देंगे, प्लेट्स भी किसी को नहीं होता, पड़ोसी को ठोक देता है। Yes, energy find the way, energy find the way, है ना। एनर्जी अपना रास्ता खोजती है ना। अब अगर दूसरी एक और बात है, आप बॉस के प्रति अगर मन में खराब भाव रखेंगे, बॉस के प्रति मन में अगर खराब भाव रखेंगे, तो आप सोचेंगे कि उसको पता नहीं चल रहा है, वास्तव में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन साइंटिफिकली, है ना, अगर आपकी भाव गलत है तो ये रिफ्लेक्ट होगा और उसको रिसीव होगा, है ना। और रिसीव होगा तो उसके मन में भी आपके प्रति गलत भावना जाएगा। एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, आप अपने मन में जो अच्छा है खराब है उसके प्रति अच्छा भाव रख के देखें। जब जो खराब है उसके प्रति जब अच्छा भाव रखेंगे, कुछ दिनों में उसके भाव भी बदल जाएंगे। और ये विज्ञान है, ये क्या है, विज्ञान है। ये हम ऐसी बात नहीं करें प्रपोज करना, टाइम रहता, टाइम का लिमिट है, तो इसको हम साबित कर देते आपको, है ना। ये बिल्कुल विज्ञान है। हाँ, अगर आप खराब हैं, हम आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे ना, आप ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम अच्छे हैं इनके प्रति ना, तो ये जब अच्छे होंगे मेरे लिए, तो कैरेक्टर लेवल पर अच्छे होंगे, कंडक्ट लेवल पर नहीं, भीतर से बदल जाएंगे, ये भीतर से बदल जाएंगे। तो आप जो है कैरेक्टर लेवल पर अपने को इंप्रूव कीजिए, अच्छा कीजिए। दुनिया जाए बाहर में, आप अच्छे रहिए, और आप वो अच्छे रहिएगा तो दुनिया बाहर में नहीं जाएगा, वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ, पर्सनल इफेक्टिवनेस। सी व्हाट इज द पर्सनल इफेक्टिवनेस इंक्लूड, देयर इज द KSA मॉडल, देयर इज ए KSA मॉडल। पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए सबसे पहला चीज क्या जरूरत है, K फॉर नॉलेज, knowledge, S for skill, and A for attitude, है ना। आपके पास अगर आप पर्सनली इफेक्टिव होना चाहते हैं, आपके पास नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। व्हाट इज नॉलेज, व्हाट एवर यू नो। अगर आप चीजों को नहीं जानेंगे, आपके पास जैसे किसी ने कहा कि हमारी प्लान जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, प्लान कॉम्प्लिकेटेड है, आप जानते हैं प्लान को, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा सामने वाले को, सामने वाला बहुत खुश होगा कि भाई बहुत जानकार आदमी है ना। अगर आप नहीं जानते हैं, इफ यू डोंट नो, यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज, तब क्या करेंगे, स्किल, है ना, स्किल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई रिसोर्सेज खोजेंगे, उसको बैठाएंगे, तरीका ढूंढेंगे, बुद्धिमानी से काम करेंगे, बुद्धि का उपयोग करके किसी तरह से उसको कन्विंस कर देंगे। नॉलेज नहीं है, स्किल है तो भी आप उसको कन्विंस कर देंगे, है ना। और नॉलेज और स्किल दोनों नहीं है आपके पास, नॉलेज और स्किल दोनों नहीं है उसके पास, लेकिन आपका एटीट्यूड है। आप चाहते हैं कि नहीं भाई ये जो पूछा है उसका जवाब हम दें, आपका एटीट्यूड है। तो एक बार जब आदमी आपके पास चला गया कस्टमर, तो आप ढूंढेंगे कि किसके पास नॉलेज है, और ढूंढ के उसके पास जाकर बैठा देंगे, सर ये प्रॉब्लम है, थोड़ा इनको एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपके पास एटीट्यूड है। और एटीट्यूड वर्क्स मोर। आपके पास नॉलेज और स्किल न हो तो भी चलेगा, अगर आपके पास एटीट्यूड हो तो। अगर एटीट्यूड नहीं है तो नॉलेज स्किल कोई काम नहीं करेगा। नॉलेज आपके पास बहुत है, कोई पूछने के हट, स्किल है चाय बनाना, क्या है, नॉलेज क्या है, कि चाय में चीनी पड़ेगा, दूध पड़ेगा, पानी पड़ेगा, दिस इज द नॉलेज। स्किल क्या है, पानी कितना पड़ेगा, दूध कितना पड़ेगा, चीनी कितना पड़ेगा, चाय पत्ती कितना पड़ेगा, ये क्या है स्किल।